Hello guys, welcome to Patel Science Academy. Dear students, this is the lecture based on the exercise of the 12th standard for the chapter number 2, reproduction in lower and higher animals. Dear students, in this chapter you will have all the answers of the question given in the exercise. So dear student, without wasting the time, let's start the lecture. Exercise chapter number 2, reproduction in lower and higher animal. So dear students, as you know, this is Shahzad Yunus Patel sir and this is Patel Science Academy. Dear students, question number 1 is based on the multiple choice question, and the question number 1 is question number one is the number of the nuclei present in the zygote is dash. There are 4 options given: A 2, B 1, C 4 and D 8. And the second question is which of these is the male reproductive organ in the human being? A is sperm, B is seminal fluid, C is testes and D is ovary. So dear students, the correct answer for the 1 number question is A, that is 2, and the correct answer is testes, that is C for the question number 2. Second question is in the multiple choice question. As a third number question is attachment of the embryo to the wall of the uterus is known as fertilization or gestation, cleavage and implantation. And the fourth number question is rupturing of follicles and discharge of ova is known as there are 4 options given: capacitation, gestation, ovulation and copulation. Dear students, the answer for the first question is implantation and the second for ovulation. Dear students, the fifth number question in human female, the fertilized egg gets implanted in the uterus. At 4 answer is given after after about the 7 days of fertilization, after about the 30 days of fertilization, after about the 2 month of fertilization, and after about 3 weeks of fertilization. Dear students, the correct answer is A, after about 7 days of fertilization. Thereafter, the next question number 6 is test tube baby technique is called. Dear students, first answer is in vivo fertilization, second is in situ fertilization, third is in vitro fertilization and artificial insemination. Dear students, correct answer is IVF, that is in vitro fertilization, C. Thereafter, question number 7, the given figure shows a human sperm. Various part of it are labeled as ABCD. Which labeled part represents the acrosome? Here you will see one diagram, and in this diagram there are 4 label given A, B, C, D. So small a option is B, small b is C, small c is D, and small d option is A. So don't be confused, here the correct answer is A, means A for acrosome. Acrosome in the diagram is indicated by this A label, and A label is given at 4th number option, that is D. That's why A means the option D is correct. Yeah, the next question in the multiple choice question is the presence of beard in boys is means. Dear students, boys में जो beard होती है, दाढ़ी होती है, वो अगर बॉडी में बॉयज़ के है तो वो किस चीज़ की, ये फॉलोइंग 4 ऑप्शन में से किस चीज़ को इंडिकेट करती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को, या फिर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को? सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. देयर आफ्टर डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको 1 सेंटेंस में या बहुत ही शॉर्टली आपको आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिटस एंड एन एम्ब्रियो? तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर यहाँ पर है एम्ब्रियो इज द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल 8 week of the development and formed from the zygote, while a fetus is developing organism from the beginning of the 3rd month after 8 week till the birth. So dear students, fetus का meaning
और एम्ब्रियो का मीनिंग यहाँ पर आपको क्लियर मैं बता रहा हूँ। एम्ब्रियो यानी एक ऐसा डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म जो स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद से, जिसका डेवलपमेंट और 8 वीक तक ऑलमोस्ट 8 वीक तक रहता है, तो उस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो बोलते हैं, जो कि जाइगोट से बनता है। और उसके बाद फीटस का को बोलते हैं, फीटस जो है वो बोलते हैं टू द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 3rd मंथ, यानी एम्ब्रियो के बाद, यानी 2-2.5 महीने के बाद, 8 वीक के बाद जब उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब आगे बढ़ता है, यानी आफ्टर 8 वीक जो 3rd मंथ से स्टार्ट होने वाला जो डेवलपमेंट है, उस स्ट्रक्चर को टिल द बर्थ, यानी बच्चे की बर्थ होने तक जो स्ट्रक्चर है मम्मी के बॉडी में, उसको बोलते हैं फीटस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा डिफरेंस है फीटस में और एम्ब्रियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन द पाथ ऑफ द स्पर्म अप टू द यूरेथ्रा। स्पर्म क्या है आपको डियर स्टूडेंट्स मालूम है। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे पास वाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रीटी टेस्टिस से होते हुए, वासा डिफरेंस से होते हुए एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस और लास्ट में यूरेथ्रा। ये इसका पाथवे है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। उसके बाद 3rd क्वेश्चन आता है, विच ग्लैंड्स कॉन्ट्रीब्यूट्स द फ्लूइड ऑफ द सेमन। सेमन जो मेल की बॉडी में होता है, उसमें कौन से ग्लैंड्स का लिक्विड जो है कंट्रीब्यूट होता है। डियर स्टूडेंट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट्स द फ्लूइड टू द सेमन, यानी इसमें ये 3 सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, इनके लिक्विड जो है उसमें मिक्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल। तो कौन से ग्लैंड है, उसका नाम है टेस्टिस, जिसको प्राइमरी गोनेड्स भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, वेयर डज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑकर। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन ये जो प्रोसेस है, ये बॉडी में कहाँ पर होते हैं, कौन सी जगह पर होते हैं, कौन से लोकेशन पे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर ये है, फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, और इम्प्लांटेशन जो होता है वो होता है एंडोमेट्रियम, यूटेरस के एंडोमेट्रियम में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इनलिस्ट द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन इन द फीमेल। फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो है, द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल इंक्लूड्स द पार्ट एक्सटर्नल टू द वजाइना एंड आर लोकेटेड कलेक्टिवली कॉल्ड वुल्वा। मीन्स द कवरिंग और द रैपिंग और द प्यूडेंडम। डियर स्टूडेंट्स, दे इंक्लूड द पार्ट, कौन से पार्ट आते हैं। वेस्टिब्यूल्स आता है ए नंबर पे, फिर उसके बाद आता है लेबिया माइनोरा, फिर आता है क्लाइटोरिस, फिर उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा, और लास्ट में आता है मॉन्स प्यूबिस। तो इस तरह से ये इसका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है फीमेल बॉडी का। उसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लास्टुला एंड द गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला में कोई तो भी 2 डिफरेंस आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर है, ब्लास्टुला हैज़ अ ब्लास्टोसील व्हाइल द गैस्ट्रुला हैज़ अ गैस्ट्रोसील और आर्केंटेरॉन। तो ये पहला डिफरेंस आप बता सकते हैं कि ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रुला में गैस्ट्रोसील। ब्लास्टुला इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन के थ्रू ब्लास्टुला तैयार होता है, एंड द गैस्ट्रुलेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन से गैस्ट्रुला तैयार होता है। ब्लास्टुला अंडरगो इम्प्लांटेशन फॉलोड बाय द गैस्ट्रुलेशन, एंड गैस्ट्रुला अंडरगो मॉर्फोजेनेसिस एंड देन फॉर्म द जर्म लेयर। इसमें से कोई भी 2 आप बता सकते हैं डिफरेंस। उसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड जाइगोट। एम्ब्रियो और जाइगोट में आपको डिफरेंस बताना है। तो एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, द एम्ब्रियो इज द डेवलपमेंटल स्टेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्लीवेज अंटिल द 9 वीक, और the embryo first undergo division without growth, and the embryo enters the uterus at the 16 cell state, and the embryo floats free in the uterus temporarily, and uterine secretions are used for nourishment। जबकि zygote की डिटेल आपको यहाँ दे रहा हो, the sperm and the egg join to form the diploid cell that is called zygote, and the first cell of a new individual। Dear students, zygote result of the fusion of the DNA from the sperm and the egg, and fertilization occur in the fallopian tube, and the zygote begin rapid mitotic cell division, beginning of the human
डेवलपमेंट। या स्टूडेंट्स इसमें से आप कोई भी 2-3 सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब उसके बाद आती है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले द फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन मेल इज़, क्या है। दूसरा क्वेश्चन है द डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्म। एंड थर्ड क्वेश्चन है द स्पर्म फर्टिलाइज ओवम इन द डैश ऑफ फैलोपियन ट्यूब। करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का बोलते हैं उसको टेस्टिस, और वर्म यूटेरस को भी बोलते हैं, और स्पर्म जिसको फर्टिलाइज करता है ओवम फैलोपियन ट्यूब में उस प्लेस को एम्प्यूला बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द डिश लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंस टू एंड फॉर्म द फिटस बॉडी इज कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। गोनोरी इज कॉज बाय द कौन डैश बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से गोनोरी होता है, यानी विच बैक्टीरिया इज द causative organism of this gonorrhea, and the hormone produced by the testis is। so dear students, वो डिश लाइक स्ट्रक्चर जो हेल्प करती है इन द ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द फिटस बॉडी इज कॉल्ड प्लासेंटा। गोनोरी जो है निसेरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया से होता है, और द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। या स्टूडेंट्स उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। राइट अ नोट ऑन द बडिंग इन द हाइड्रा, तो आप ये आंसर देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑकरिंग इन स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में कौन से प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आप देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, हर्माफ्रोडाइट भी है। या स्टूडेंट्स के बाद जो आता है वो आता है बडिंग जैसे प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो इंडिकेट करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में IVF पर नोट लिखना है। IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ये टेक्निक के थ्रू जो है वुमेन इज़ नॉट, वो ऐसी वुमेन विच इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बेबी बिकॉज ऑफ हर ब्लॉक ओविडक्ट। सो ऐसे वुमेन जो है उनके लिए IVF यूज़ किया जाता है। टू फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट कैन नॉट बी टेक्स प्लेस, द डॉक्टर हैज़ ऑर्गेनाइज अ टेक्निक IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू फर्टिलाइज द गैमेट आउटसाइड, एंड व्हेन द zygote form outside then it is placed in the woman's uterus and then developed in the of the body takes place in the uterus only। या स्टूडेंट्स ऐसी वुमेन जो जिसके बॉडी में कुछ रिप्रोडक्टिव ब्लॉकेज है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जिसके कारण वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसका एग निकाल कर उसके बॉडी में स्पर्म को अगर ऐड करना है तो टेस्ट ट्यूब में उसके बॉडी से एग निकाल कर स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में डालकर दोनों को मिक्स करने के प्रोसेस को IVF बोलते हैं। इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी कंडीशन, यानी ये ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो मदर की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, मदर की बॉडी के बाहर इन द टेस्ट ट्यूब हो रहा है, इसलिए इसका IVF का दूसरा नाम टेस्ट ट्यूब बेबी भी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब वो स्पर्म उसमें एग से मिक्स हो जाता है तो उसको वापस से इस फीमेल की बॉडी में या फिर कोई सरोगेट मदर की बॉडी में इंट्रोड्यूस करके प्रेग्नेंट किया जा सकता है। इस तरह से जो बच्चा पैदा होता है उसको IVF टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कमेंट ऑन एनी टू मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उसमें आते हैं कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में जो है पिल्स आती है जैसे कि सहेली, मालाडी, माला एन, इस तरह की इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी पे नोट लिखना है। ट्यूबेक्टोमी क्या को बोलते हैं? इट इज़ द प्रोसेस इन विच द फॉलोपियन ट्यूब इन द फीमेल बॉडी कैन बी ब्लॉक बाय सर्जरी। फीमेल की बॉडी की फॉलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, कट करके या नॉट बांध दिया जाए, तो उस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी बोलती है, और ये प्रेगनेंसी को रोकने का एक मेथड है जिससे दैट वुमेन इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस द यंग वन। तो ये एक मेथड, परमानेंट मेथड है। Give the name of the causal agent organism of the syphilis and write on its symptoms. Write a note on its symptoms. तो सिफिलिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको देना है, तो आंसर है ट्रेपोनेमा पैलिडम, और उसके बाद जो है इसके सिम्टम्स आते हैं हेडेक, itching around the genital, loss of appetite, rashes all over the body, skin lesion outside the genital, insomnia, fever and swelling on the lymph node.
Then what is colostrum? The first milk which is rich in antibodies is known as colostrum. Dear students, बच्चे की बर्थ होने के बाद मम्मी का जो पहली बार बच्चा जो है मिल्क फीड करता है, तो उस मम्मी के उस मिल्क को जिसमें एंटीबॉडीज़ होती है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं. एंड इट प्रोवाइड्स, इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न बेबी so as to find the new environment. So dear students, this is about this question number